Good morning, my dear student. Today we are going to start class 11th history, chapter 5 Nomadic Empire. I have discussed about this chapter in my previous video. In the introductory session, I have informed you about the little bit information about the Temujin and the history of Mongols. Today we will continue this chapter. If you remember that we were reading social and political backgrounds topic, and in this topic we have completed the two paragraphs. In the two paragraphs which we read, that is the very important thing, the demography, the various ethnic groups which emerge in one empire, that is the Mongols. Their geographical region that was different. Today we have to read the ethnic and the language ties united the Mongols people, but the scarce resources meant that their society was divided into paterlineage. This lineage, the richer families were larger process, more animals and pasture land. They therefore had many followers and were more influential in the local political. Periodic nature calamities, either usual harass, cold winter when game and stored provisions ran out, or drought, which praised grassland would force families to forge further afield, leading to conflict. Other pasture land and predatory raids in such a livestock group of families would occasionally ally for the offensive and the defensive purpose around richer and more powerful lineages. But the barring few exceptional, Genghis Khan, the confederation of Mongol and Turkish tribes was the perhaps matched in size only, and that which had been stitched together in the 5th century by Attila. This paragraph also we have discussed that how Genghis built their empire, किन किन ग्रुप से, किन किन परिवारों को मिलाकर के उसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, एक बड़ा कॉन्फेडरेसी बनाई, परिसंघ बनाया, जो अट्टीला जो 453 तक थी उससे कई गुना कई बड़ी थी ये परिसंघ मंगोलों की, जिसमें तुर्किश ट्राइब के साथ साथ मंगोलों की बहुत सारी ट्राइब्स को मिलाकर उसने एक बड़ी परिसंघ को निर्माण किया। इनके पास अपने चरागाह थे, अपने घोड़े थे, अपने जानवर थे, इनके साथ एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे। लैंग्वेज के आधार पे, एथनिक ग्रुप्स के आधार पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण इनका समाज अनेक पैटर्लिनी डायनेस्टी के आधार पे मिला जुला था। कुछ परिवार काफ़ी धनी थे, कुछ परिवार गरीब थे, लेकिन इनके अपने कल्चर सेम थे। क्लाइमेटिक रीजन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस इनकी लाइफ को काफ़ी डिफ़िकल्ट बना रही थी। ठंडे मौसम में अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक भटकना, चरागाह के लिए, पास्चर लैंड के लिए, they were moved towards one place to other place. They have their animals with their slaves and dogs also. The climatic conditions
play very important role in the Mongols' life. But they interact, but they unite on the basis of language, on the basis of ethnic groups, and on the basis of battlefield. Temujin played a very important role to establish the confederacy, a very broad confederacy with the help of the other tribal peoples. He also helped the Tajik Turks. They emerged him in their confederacy and they developed a very big confederacy, एक बड़ा परिसंघ बनाया उसने जो अटीला से भी बड़ा था. Unlike Attila, however, Gangezi Khan's the political system was far more durable and survived its founder. It was stable enough to counter large armies with superior equipment in China, Iran, and Eastern Europe. And as they established control over these regions, the Mongols administrated complex agrarian economy and urban settlements. Sedentary societies that were quite distant from their own social experience and habitat. Unlike Attila, कहता है कि अटीला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही. अपने फाउंडर की मृत्यु के बाद भी ये व्यवस्था स्थापित रही, कायम रही. ये व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के देश की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में ये लोग सक्षम थे. इट मीन्स दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. एक बड़ी संगठित सेना थी. मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया जो एक परिसंघ था, ये इतना ताकतवर था कि यूरोप की किसी भी सेना से युद्ध लड़ने में सक्षम था. मंगोलों के इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं, एग्रीकल्चर लैंड्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमी और जो अर्बन मिलियो थी, स्थानबद्ध समाज, सेडेंट्री सोसाइटीज़ की बड़ी कुशलता से इन लोगों के ऊपर मंगोलों ने शासन किया. मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनमें बिल्कुल ही भिन्न थे. यदि आप इन चीज़ों पर ध्यान से देखें तो कहते हैं कि यदि ये नोमैडिक और सोशल पॉलिटिकल जो इनका ऑर्गेनाइजेशंस था वो कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे. दोनों एक दूसरे को समझते थे. बोथ वर फेमिलियर विद देयर ट्रेडिशंस. वास्तव में स्टेप्स क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था. यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी. यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादन और लोहे के उपकरणों को चीन में लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे. इन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे, आपस में लड़ लेते थे. दोनों पक्षों में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा इस तरह के युद्ध होते रहे. जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते तो अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्त रखने को मजबूर कर देते थे. कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे और मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर इन संबंधों में बदलाव आया. ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव के प्रयोग स्टेपी क्षेत्र के में बड़े आत्मविश्वास के साथ करते थे. स्थायी कमजोर
समाज ज़्यादा शक्तिशाली रूप में नहीं उभर सके, लेकिन मंगोलों ने अपनी व्यवस्था के कारण एक ताकतवर साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने नगरों को लूटा, दूसरी ओर नोमैडिक लूटपाट का जो ये क्षेत्र था दूर भगाए गए, और फिर इन्होंने अपनी लाइफ को प्रॉपर स्टेब्लिश किया। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन के नोमैडिक से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8th सेंचुरी बीसी से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना, फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। चाइना में फोर्टिफिकेशन 3rd सेंचुरी बीसी में दिखाई देती है। 3rd सेंचुरी बीसी से इन फोर्टिफाइड किलेबंदियों का एक एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया। योर फाइनेस्ट एग्जाम्पल चाइनीज वॉल, चाइना की दीवार सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। चीन की महान दीवार के रूप में हम इसको समझ सकते हैं किस तरीके से चाइनीज लोगों ने अपनी सुरक्षा के प्रति अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। उत्तरी चीन के ग्रह समाजों पर यायावर द्वारा लगातार हमले हुए, जिससे अनस्टेबिलिटी और फियर का माहौल यहाँ पे दिखाई देता है। That is a very different things. That Mongols, there are two types. दोनों के अलग अलग तौर तरीके थे। Two societies were hardly foreign to each other. कहते although the social and the political organization of the nomadic and agrarian economy were very different, the two societies were hardly foreign to each other. In fact, the scant resources of the steppe land drove Mongols and other Central Asian nomads. This was mutually benefited to both parties. Agriculture produce and iron utensils from China were exchanged for horse fur and game trapped the steppes. Commerce was not without its tension, especially as the two groups unhesitatingly applied military pressures to enhance profit. When the Mongol lineage allied, they could force their Chinese neighbors to offer better terms, and trade ties were sometimes discarded in the favor of outright plunder. This relationship would alter when the Mongols were in disarray. The Chinese would confidently assert their influence in the steppes. These frontiers were more debilitating to settled societies. They dislocated agriculture and plundered cities. Nomads, on the other hand, could retreat away from the zone to conflict with the marginal losses. Throughout its history, China suffers the extensively from the nomad intrusions, the different regimes. Even as early the 8th century BC built the fortifications to protect their subjects. Starting from the 3rd century BC, these fortifications started to be integrated into the common defensive outwork known today as the Great Wall of China, a dramatic visual testament to the disturbance and fear perpetrated by the nomadic raids on the agrarian social of North China. My dear student, what you find in this paragraph, you can easily understand that there are two types of Mongol.
one who involved himself in the pastoralist industry, and others a little bit who were peasants, agriculturalist culture. But it does never mean that they were only involved in agriculture. They sometimes they involved in agriculture, but mostly they were pastoralist. They wandered with their animal one place to other place. Ethnic groups and their criteria that was different. If both, it means herders एंड सेकेंड वो लोग जो लूटपाट करते थे दोनों आपस में मिल जाते थे तो उनकी कंडीशन अच्छी हो जाती थी। चाइना के लोगों से जो पर्सनल एक्सचेंज करते थे वो लोहे और बारूद के बदले भेड़ों की खाल, दांत, बालों से बने वस्त्र, जब दोनों यूनाइट होते थे दोनों ग्रुप्स तो अधिक लाभ की स्थिति में होते थे। कभी कभी ये लूटपाट करते थे। यायावर समाज की सबसे बड़ी समस्या चीन की थी लूटपाट की, जिससे बचने के लिए बाद के राजाओं ने फोर्टिफिकेशन शुरू कराया। 3rd सेंचुरी BC में हमें चाइना में फोर्टिफिकेशंस दिखाई देने लगती है। फोर्टिफिकेशंस क्यों बना होगा? क्योंकि लोगों को डर से निकालने के लिए, लोगों को सुरक्षा की भावना देने के लिए ये फोर्टिफाइड एरिया बनाए गए होंगे। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण, फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना है। सी वांगटी नामक एक शासक ने ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना का निर्माण कराया था। हनुवंश का था ये। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना के थ्रू ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अटैक चाइना पे हो रहे थे और किस तरीके से वहाँ के राजा अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के आर्किटेक्चर का निर्माण करा रहे थे। अब द कैरियर ऑफ गंगेजी खान। Gangeji Khan was born sometime around 1162. The Onan River in the north of the present-day Mongolia. Named Temujin, he was the son of Yasugei, the chieftains of the Kiat, a group of family related to the Borjit clan. His father was murdered at an early age, and his mother, the Olen Ike, raised Temujin, his brother and stepbrother, in great hardship. The following decades was full of reversal. Temujin was captured and enslaved, and soon after his marriage, his wife Borte was kidnapped, and he had to fight to recover her. During these years of the hardship, he also managed to make the important friends. The young Boguruche was his first ally. Reminded trusted friend Jamuka, his blood brother Anda was another. Temujin was also restored old alliance with the ruler of the Karats, Tugril or Ong Khan. His father was old blood brother. Through the 1180s and 1190s, the Temujin reminded an ally on Ong Khan and used the alliance to defeat powerful adversaries like Jamuka. His old friend had become hostile foe. It was after defeating him that Temujin felt confident enough to move against other tribes. The powerful Tatars, his father Asinesans, the Kirats, and the Ong Khan himself in 1203. The final defeat of the Naiman people and the powerful Jamuka in 1206 left Temujin as the dominant personality in the politics of the steppe land, a position that was recognized at the assembly of Mongols chieftains, Kartilai, where he was proclaimed that great Khan of the Mongols. With the title Gangezi Khan, the Oceanic Khan
आर यूनिवर्सल रूलर। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मॉडर्न मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया के उत्तरी भाग में उनोन रिवर के निकट ये मंगोल तिमुजिन पैदा हुआ। इसका प्रारंभिक नाम तिमुजिन था। इसके पिता नाम येसुजई, माता ओलनकी। येसुजई जो कियात कबीले के मुखिया थे। एक परिवार का समूह था जो बोरजिगिद था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। इसके पिता की अल्पायु में ही हत्या हो जाती है। माता ओलोन इके ने तेमुजिन और उसके अपने सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया। 1170 के डिकेड्स तक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर तेमुजिन तथा उसके सौतेले भाई का लालन पालन उनकी माँ ने बड़ी कठिनाई से किया था। 1117 के कठिन दौर में तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के उपरांत, विवाह के पश्चात उसे भी किडनैप कर लिया गया। चंगेज खान इसके लिए लड़ाई लड़ी और अपनी पत्नी को वापस लाया। उस समय उसने कई सारे दोस्त बनाए। नवयुवक बोगुरचे उसका पहला मित्र था और सदैव उसका एक विश्वास साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा जमुका भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने केराइट्स लोगों के शासकों व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, इट मीन जमुका वाज हिज ओल्ड फ्रेंड, बाद में वो उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के डिकेड्स में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और इसके साथ मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के लिए तेमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया। जमुका को जब पराजित किया तो तेमुजिन के अंदर असीम ऊर्जा का संचार हुआ। अब वह अन्य शक्तिशाली कबीलों के विरुद्ध भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। किस तरीके से उसने अपने पिता के दोस्त तुगरिल से मित्रता की, बोगुरचे उसका मित्र बना और एक नए युद्ध की तरफ वो निकल पड़ा। जब उसने जमुका को पराजित किया, जमुका जो पहले उसका दोस्त था, और फिर यहाँ से जो उसने युद्ध शुरू की, उसमें सबसे पहला युद्ध उसने अपने पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार, कैराइट्स और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने युद्ध 1203 के आसपास छेड़ दिया। 1206 शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से उसने पराजित किया। तेमुजिन ने स्टेपी क्षेत्रों की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। ताकतवर राजा के रूप में उसने अपनी सत्ता स्थापित की इस क्षेत्र में और उसकी प्रतिष्ठा को मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलतई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों ने अपना महान नायक क्वान या ग्रेट खान घोषित किया। इस तरीके से मंगोल एम्पायर का फाउंडर चंगेजी खान की लाइफ कितनी स्ट्रगल्स थी। इन इनिशियल टाइम ही वाज फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। ही वाज हिमसेल्फ किडनैप्ड, हर वाइफ आल्सो किडनैप्ड, हर फादर वाज killed by their neighbor territories, and in critical conditions he established himself. He not only established himself but also he established a great empire, that is the Mongolian Empire. It is a very strange when we read about the Mongol. हमें चंगेज की हिस्ट्री को पढ़ के ये समझना चाहिए कि किस तरीके से लोग कठिन परिस्थितियों में आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं। आफ्टर द डिफीट
in 1218 of the Quran Khita, who controlled the Tian Shan mountains northwest of China. Mongol dominions reached the Amudarya and starts the Transoxiana and Khwarizm. Sultan Muhammad, the ruler of Khwarizm, felt the fury of Gangezi Khan's rage when he executed Mongol envoy in the campaign between 1219 and 1221. The great cities Otrar, Bukhara, Samarkand, Balkh, Ghazni, Mav, Nisapur, and Had surrendered to the Mongol forces. Town the resisted were the devastated at the Nisapur, where a Mongol prince was killed during the Sai operations. Gangezi Khan commanded that the town should be laid waste in such a manner that the site could be plunged upon, and that in the accession the vengeance for the death of the prince, not even caste and dog, should be left alive. कहता है कि 1218 में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमु दरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्यों तक फैल गया। ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजन बना। उसने मंगोल के दूतों का वध करा दिया था, इसलिए चंगेज खान काफ़ी नाराज हुआ और उसने ख्वारिज्म को पूरी तरीके से नष्ट किया। 1219 to 1221 तक के अभियानों में बड़े नगर ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बाल्ख, गुरगंज, मर्व, निसापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। चंगेज खान ने आदेश दिया था कि नगर को इस तरह से विध्वंस किया जाए। जब निसापुर में उसने घेरा डाला था और निसापुर में एक मंगोल राजकुमार की हत्या हो गई, तो चंगेज ने आर्डर दिया कि इतनी बुरी तरीके से इस नगर को नष्ट किया जाए, यहाँ पे कुत्ते बिल्ली भी जीवित ना बचे। मंगोल सेनाओं ने सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली गई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उसने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना का दूसरी हिस्सा, दूसरी टुकड़ी सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध तक पीछा किया। सिंध नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भाग और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु भारत में असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास में भिन्नता और मार्ग की कठिनाइयों को ध्यान करके वो भारत आने के लिए तैयार नहीं हुआ और इस प्रकार भारत मंगोलों के अटैक से बच गया। अल्तमश उस समय सल्तनत का शासक था, जिसने जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण देने से मना करके भी मंगोलों के कोप भजन बनने से भारतीय क्षेत्रों को बचा लिया। तो इस तरीके से जो बातें मंगोल्स ने सोची भारत में आने की, उसका पटाक्षेप हुआ, रुक गया। यहाँ ऊपर पैराग्राफ में मंगोल डिस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। You have to read about that. It is very easy language, you can understand. That is the very important thing, that Gangezi Khan died in 1227, having spent most of his life in the military combat. His military achievements were astounding. They were largely a result of his ability in innovate and transform different aspects of steppe combat in the extremely effective military strategies. The horse riding skills of the Mongols and to provides speed and mobility to the arm for the perfect during regular hunting expeditions, which doubled as a field the maneuvers
The steep cavalry had always traveled light and moved quickly, but now it brought all its knowledge of the terrain and the weather to do the unmanageable. They carried out the campaigns in the depth of winter, treating frozen rivers as highway to enemy cities and camp. Nomads were convincingly at the loss against fortified encampments were but Gangezi Khan learned that importance of the Seg Inagene and the Nefta bombardment very quickly. His engineers prepared light troopable equipment which was used against opponents with devastating effect. अपने जीवन के अधिकांश भाग युद्ध में व्यतीत करने के बाद चंगेज की मृत्यु 1227 में हो गई। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसकी सैनिक उपलब्धियों को यदि हम ध्यान दें तो ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। ये बहुत हद तक स्टेपी के क्षेत्रों में, स्टेप्स घास के मैदानों में युद्ध शैली की बहुत सारे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसने अपने को प्रभावशाली रणनीति बनाने में सक्षम बनाया। मंगोलों और तुर्कों की घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान कर दी। घोड़े पर सवार होकर उसके तीरंदाजों का कुशल अद्भुत युद्ध कौशल बेहद महत्वपूर्ण था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से संबद्ध कर लिया। उसने घोड़े पे बैठते हुए, घोड़े पे बैठ के शिकार करने की कला उन्होंने युद्ध में अप्लाई किया। तीर चलाने की कला घोड़े पे बैठते हुए, दौड़ते हुए घोड़े पे उन्होंने युद्ध में अप्लाई किया और काफ़ी हद तक वो सफल रहे। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभाग और मौसम की जानकारी हो गई थी। दे आर अवेयर ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, जिससे उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान कर दी। उन्होंने घोर शीत ऋतु में, विंटर सीजन में बहुत सारे युद्ध अभियान किए। नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्ग की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं प्राचीनों को आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान की घेराबंदी यंत्र, साइज इंजन और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियान में कुछ हल्के अस्त्र बना करके, कुछ अच्छे इक्विपमेंट बना करके मंगोलों की युद्ध शैली को काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया। मंगोलों के अटैक को काफ़ी बड़े क्षेत्र पर सक्षम करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की और इस तरीके से एक बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करने में वो सफल रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद पढ़ेंगे चंगेज खान के उपरांत मंगोलों की स्थिति कैसी हुई। आफ्टर द चंगेज खान, व्हाट वाज कंडीशन, विच टाइप ऑफ चेंजेस केम इन द मंगोल्स। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।